In this lecture, we will study about the first of all speed of electromagnetic wave, then source of electromagnetic wave, and energy density. Clear? What is your electromagnetic wave? There is variable electric field, and due to this variable electric field, there is variable magnetic field, and electromagnetic wave propagate perpendicular to electric field and magnetic field. In this figure, x is the direction of propagation of wave and y is the direction of electric field and magnetic field in the direction of z. The sinusoidal variation of electric field in space and time. This is your space and t stand for time. The sinusoidal variation of electric field is represented by E naught sine kx minus omega t, where k is the propagation constant and omega is the angular frequency. So this electric field in the direction of y, therefore we represent with I cap. So I cap represent the direction of electric field, that is y axis. X represent the propagation of electromagnetic wave. This is the direction of propagation of electromagnetic wave, x. Same magnetic field, there is sinusoidal variation of magnetic field with space and time in the direction z axis. So therefore j cap represent the z axis, and this is your magnitude, that is maximum, this is your amplitude, magnitude of amplitude, that is v naught, then sine kx minus omega t. There is a relation between electric field and magnetic field. The relation between magnitude of electric and magnetic field is E upon B is equal to C, that is speed of light. Ratio of electric field with magnetic field is equal to speed of light, or amplitude of electric field and magnetic field is equal, ratio of amplitude of electric field with magnetic field is equal to speed of light. This is a very important result, that is E upon V is equal to C, or E naught B naught C is equal, E naught upon V naught is equal to C. अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, क्या कैलकुलेट कर सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर सकते हैं, बिकॉज ई नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट. ई नॉट की जो वैल्यू रहेगी वो किसके इक्वल होगी? सी इंटू वी नॉट. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला दोनों में से अगर कोई भी फील्ड आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो मैग्नेटिक फील्ड आप डिटरमाइन कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड अगर गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप डिटरमाइन कर सकते हैं. नो व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? मैक्सवेल गिव्स दैट speed of electromagnetic waves depend upon the permeability and permittivity of the medium. Therefore speed of electromagnetic wave is equal to 1 upon mu naught under root mu naught epsilon naught, where mu naught is permeability and epsilon naught is permittivity. Value of mu naught, that is permeability, is 4 pi into 10 की minus 7 Newton second square coulomb inverse 2, and value of permittivity is 8.85 into 10 की minus 12. If we put the value in this formula, then speed of electromagnetic wave become equal to speed of light in vacuum. So therefore speed of electromagnetic wave in free space is equal to speed of light in vacuum. So this is your स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस और इन वैक्यूम. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस और वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, उस टाइम पे जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहेगी वो कितनी होगी? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, दैट इज 3 इंटू 10 की 8 मीटर पर सेकेंड. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, उस टाइम पे जो स्पीड होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो कितनी आएगी? इन दैट केस इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन मीडियम, in that case speed of electromagnetic wave is 1 upon under root mu into epsilon. So this is your permeability of medium and this is your permittivity of medium. अगर free space में है तो क्या आएगा? mu naught into epsilon naught, permeability and permittivity. लेकिन अगर किसी मीडियम में मूव कर रही है
तो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम एंड परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, दैट इज म्यू इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट. दिस इज योर रिलेटिव परमिएबिलिटी. म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी. सेम एप्सिलॉन इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस. क्लियर? नाउ अब हम इन दोनों टर्म्स को अलग कर रहे हैं. म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, दैट इज अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. ये टर्म हमने अलग कर दी. म्यू रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमने अलग किया. तो देयरफॉर 1 बाय अंडर रूट म्यू आर इंटू के, और ये जो टर्म है हमारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, स्पीड ऑफ लाइट. तो देयरफॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय अंडर रूट रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. क्लियर? तो यहां पे हमने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टडी किया, और मैक्सवेल ने यह कहा कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो परमिएबिलिटी और परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है, और स्पीड जो है अगर हम दोनों की वैल्यू को पुट करें तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किसके इक्वल आएगी? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल. और वो कब किस केस में होगा? जब हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं. अगर किसी मीडियम की बात कर रहे हैं तो उस केस में जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किसके इक्वल आएगी? सी अपॉन अंडर रूट रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो ये दोनों जो वैल्यू रहेंगी आपके पास वो क्या रहेंगी? डिफरेंट रहेगी. ये जो वैल्यू है सी 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू है फ्री स्पेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड की, और ये है किसी मीडियम के अंदर. तो नेक्स्ट जो हमने यहां पे डिस्कस करना है दैट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है दैट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर हम बात करें कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फर्स्ट हमारे पास जो है स्टेशनरी चार्ज. अगर हम स्टेशनरी चार्ज की बात करें, अगर हम स्टेशनरी चार्ज या फिर स्टैटिक चार्ज की मैं बात करूं, यहां पे स्टैटिक चार्ज किसका सोर्स है? स्टैटिक चार्ज जो सोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है. स्टैटिक चार्ज जो हमारे पास सोर्स है वो किसका सोर्स है? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स. यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है सोर्स क्या है वहां पे. क्लियर? स्टैटिक चार्ज जो है वो किसकी फॉर्मेशन करेगा? वो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेशन. उसने किसकी फॉर्मेशन करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देगा आपको, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड देगा. क्लियर? स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेशन करेगा. और अगर चार्ज आपका मोशन में है, यूनिफॉर्म चार्ज जो है आपका चार्ज इन मोशन में है, तो वो जो है वो किसकी फॉर्मेशन करेगा? चार्ज इन मोशन जो है वो किसकी फॉर्मेशन करता है? वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन करता है. और मैग्नेटिक फील्ड भी जो वहां पे रहेगी वो कैसी रहेगी? स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड. अब स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड और स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इन दोनों से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होती. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस होगी वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होगी. क्लियर? Because this electric field and magnetic field does not change with time. Does not change with time. Change with time. लेकिन जो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो फॉर्मेशन किसकी वजह से होती है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. तो अगर आप यहाँ पे फिगर को देखें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? वेरिएबल. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज. और हमने इसकी इक्वेशन भी, अगर हमने यहाँ पे इक्वेशन जो लिखी थी हमने, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो वो जो वेरिएशन था वो साइनसोडियल वेरिएशन था. किसके साथ वेरिएशन था? स्पेस और टाइम के साथ. क्लियर? सेम जो मैग्नेटिक फील्ड भी है वो भी हमारे पास क्या है? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है.
तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टैटिक चार्ज और चार्ज इन मोशन में अगर हैं तो वो वेरिएबल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे और वहां पे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्मेशन नहीं होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्मेशन कब होती है, एक्सेलरेटेड चार्ज, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो किसको प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां पे क्या हुआ, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हमारे पास वो एक्सेलरेटिंग चार्ज है, एक्सेलरेटिंग चार्ज। क्योंकि एक्सेलरेटिंग चार्ज किसको प्रोड्यूस करेगा, एक्सेलरेटिंग चार्ज जो है वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। एक्सेलरेटिंग चार्ज जो प्रोड्यूस करेगा वो किसको प्रोड्यूस करेगा, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अगर हम इसको अगर यहां से देखें तो अगर चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज ऑसिलेटिंग चार्ज जो हमारे पास, ऑसिलेटिंग चार्ज जो है हमारे पास वो किसकी प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वेरिएबल। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है टाइम के साथ, स्पेस के साथ, उस केस में उसके परपेंडिकुलर में किसकी फॉर्मेशन होगी, वो अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसकी फॉर्मेशन कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। इट मींस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे सोर्स हुआ किसका, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर? और फिर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसको प्रोड्यूस करेगा, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। फिर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसको प्रोड्यूस करेगा, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। मींस इलेक्ट्रिक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों एक दूसरे का क्या रहेंगे वहां पे, सोर्स। और उन दोनों की वेरिएशन की वजह से एक न्यू वेव जो प्रोड्यूस होगी, वो जो वेव रहेगी वो कौन सी रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वो उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगी, प्रोपेगेट करेगी। तो जो सोर्स है वहां पे, वो सोर्स क्या है, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। क्योंकि ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेशन होगी और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बनेगा, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और सेम ये अगर आपको ये इसका सर्किट देखें अगर आप, तो ये जो हमारे पास कैपेसिटर है और कैपेसिटर्स को अगर हम इंडक्टर के साथ पैरेलल में ज्वाइन करें और जब हम कैपेसिटर्स को चार्ज करते हैं तो ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्ज होने के बाद यहां पे क्या सेटअप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? फिर उसकी क्या होगी, डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग जब होगी तो इंडक्टेंस में क्या आएगा, करंट, और उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन। तो यहां पे जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेशन होगी ड्यूरिंग चार्जिंग। बाद में डिस्चार्ज जब हो रहा है तो वहां पे क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से ये यहां पे क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। और उसी ऑसिलेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर हम यहां से फिगर में देखें तो ये हमारे पास ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसको प्रोड्यूस करेगी, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, प्रोड्यूस करते रहेंगे। क्लियर? तो देयरफॉर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ ईच अदर। तो दिस इज योर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना है दैट इज एनर्जी डेंसिटी। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे यहां पे एनर्जी डेंसिटी को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो एनर्जी डेंसिटी को यहां पे हमने डिस्कस करना है। क्लियर? एनर्जी डेंसिटी जो हमारे पास होगी दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट। जिस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रही है वहां उसका क्या आएगा, वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
अब अगर मैं एनर्जी डेंसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, पर ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टैटिक नहीं है, वो क्या है हमारे पास, वेरिएबल। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी है वो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमारे पास क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ वी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये तो टोटल एनर्जी डेंसिटी है अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जब भी वेरिएशन वहां पे है, अलग अलग वैल्यू अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मिल रही है, तो उस केस में हम किसकी बात करते हैं, उस केस में हम बात करते हैं एवरेज की। वहां पे जो हम बात करेंगे एवरेज की, तो यहां पे हम कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड। और एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चेंज कर दें रूट मीन स्क्वायर में, तो वो हमारे पास किसकी इलेक्ट्रिक डेंसिटी आ जाएगी, वो आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जब आपके पास वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है उस केस में आप किसकी बात करेंगे, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड की। और एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिखेंगे, ई रूट मीन स्क्वायर। क्लियर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर साइनसोइडल इन स्पेस एंड टाइम। दोनों जो है वो एक्स और टाइम के साथ क्या कर रही हैं, वेरी कर रही हैं, स्पेस में वो टाइम के साथ वेरी कर रही हैं। देयरफॉर एवरेज एनर्जी डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड। तो वहां पे किसकी बात करेंगे हम, एवरेज एनर्जी डेंसिटी की। और एवरेज एनर्जी डेंसिटी को अगर हम E और V को रिप्लेस कर दें, E रूट मीन स्क्वायर और V रूट मीन स्क्वायर से, तो हमें क्या मिलेगी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो हमारे पास वो हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर है, तो E की जगह क्या लिखेंगे, E रूट मीन स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन ई रूट मीन स्क्वायर। तो ये हमारे पास एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आ जाएगी, डेंसिटी आएगी। और ये हमारे पास अगर हम यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, तो रूट मीन स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, ई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ई नॉट क्या है, जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट। तो जो एवरेज वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी वो एवरेज वैल्यू क्या मिलेगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो मिलेगी वो ई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। लेकिन हमें यहाँ पे ई स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो ई स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, ई रूट मीन स्क्वायर जो आएगा ई नॉट स्क्वायर, और अंडर रूट का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो ई रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 और 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4। तो देयरफॉर जो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास यहाँ पे आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी आएगी, एनर्जी डेंसिटी, वो एवरेज एनर्जी डेंसिटी दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो दिस इज योर एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो है हमारे पास वो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। उसी तरह से हम एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड की जो स्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है हमारे पास, उसको B की जगह क्या लिख देंगे हम, V रूट मीन स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा हाफ V रूट मीन स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अगेन B रूट मीन स्क्वायर किसके इक्वल होगा, V नॉट अपॉन अंडर रूट 2। तो देयरफॉर V स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास V नॉट स्क्वायर अपॉन 2। जब भी हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो जो मेरे पास एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की आएगी
वो 1/4 v रूट मीन स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो ये सेपरेटली हमने एनर्जी डेंसिटी डिटरमाइन की, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की और एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की। अगर हम टोटल एनर्जी डेंसिटी यहां पे निकालनी है, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आपको चाहिए, टोटल एनर्जी डेंसिटी या फिर एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नॉट टोटल, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे पास आएगी वो UE प्लस UV, और ये हमारे पास जो आएगी वैल्यू, UE की वैल्यू कितनी है 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर प्लस 1/4, दिस योर V E नॉट 1/4, दिस योर रूट मीन स्क्वायर। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा V नॉट स्क्वायर, दिस इज योर V नॉट स्क्वायर, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज योर V नॉट स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी 1/4 V नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो ये मेरे पास जो है वो एनर्जी डेंसिटी किसकी आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। क्लियर। नेक्स्ट हमने ये प्रूव करना है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके इक्वल है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने प्रूव करना है कि वो किसके इक्वल है, वो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। तो ये मेरे पास क्या है, ये है एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मेरे पास क्या है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की है और मैग्नेटिक फील्ड की। अगर हम ये वाली साइड से स्टार्ट करें तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या आया, एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो हमें मिली दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास। अब हमारे पास एक रिलेशन है दैट इज E नॉट अपॉन V नॉट, वो किसके इक्वल है, वो C के इक्वल है। तो हमें E से B तक पहुंचना है, तो ये E को कन्वर्ट करो B में, तो E नॉट कितना आएगा, E नॉट आएगा CV नॉट, और C की वैल्यू भी है हमारे पास, C की वैल्यू कितनी है 1/√1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हमें E नॉट की वैल्यू पुट करनी है, तो E नॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पे E नॉट स्क्वायर कैलकुलेट करो, E नॉट स्क्वायर कितना आएगा, C स्क्वायर V नॉट स्क्वायर, तो C स्क्वायर यहाँ से फाइंड आउट करो, C स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो C स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करो, फिर E नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो C स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करो पहले, तो E नॉट स्क्वायर V नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब E नॉट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ देखो पुट करके, तो ये मेरे पास कितना आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट करो, V नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कैंसिल आउट होएगा, और म्यू E जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/4 V नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। और ये जो वैल्यू है म्यू V जो हमारे पास होता है वो किसके इक्वल होता है 1/4 V नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, मीन्स एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देयरफॉर ये दोनों क्या हो जाएंगी इक्वल, ये दोनों क्या होगी इक्वल। अब अलग से देखो, जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हमारे पास, वो सम है एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। तो जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं,
ये भी लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एनर्जी डेंसिटी और हमारे पास क्या लिखी होती है, हमारे पास वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, अगर यही वैल्यू अगर हम पुट कर सकते हैं म्यू ई 1/4 वी नॉट म्यू नॉट, और या फिर हम क्या लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई रूट मीन स्क्वायर। क्लियर। तो ये वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो मेरे पास आएगा 2 हाफ एप्सिलॉन नॉट ई रूट मीन स्क्वायर। ये भी हमने किया हुआ है, ये भी पुट कर सकते हैं आप। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट ई रूट मीन स्क्वायर। क्लियर। तो ये भी जो हमारे पास वो एनर्जी डेंसिटी है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो उसी तरह से आप अगर आप इन दोनों को पुट कर दें मैग्नेटिक फील्ड के केस में, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को 2 म्यू वी लिख सकते हैं, क्योंकि यू ई इज इक्वल टू अभी हमने प्रूव किया। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे वैल्यू आ जाएगी 1/2 वी रूट मीन स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा वी रूट मीन स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। क्लियर। तो एवरेज दिस योर एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमें मिल रही है, तो वो एनर्जी डेंसिटी आप देखो क्या क्या फॉर्मूले मिलेंगे आपको, एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव दोनों का सम। क्लियर। दोनों की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू आपके पास हाफ एप्सिलॉन ई रूट मीन स्क्वायर प्लस हाफ बी रूट मीन स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये भी लिख सकते हैं। 2 म्यू ई भी लिख सकते हैं। क्लियर। और 2 म्यू वी भी लिख सकते हैं कि म्यू ई दोनों सेम है। और एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल आएगी, एप्सिलॉन नॉट ई रूट मीन स्क्वायर, ये भी एनर्जी डेंसिटी है हमारे पास। और एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वी रूट मीन स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इसी और वी रूट मीन स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये सारी जो है वो एनर्जी डेंसिटी है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी है। और एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा, दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। एक और हमने स्टडी किया, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 वी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अब देखो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सभी जो है वो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लियर। तो यहां से जो है वो न्यूमेरिकल पुट कर सकता है डायरेक्ट। तो अगर आप 1 या 2 बार रिवाइज करोगे तो ये सारी टर्म्स आपको क्या हो जाएंगी, वो लर्न हो जाएंगी। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर माई लेक्चर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।